Good morning, children. In the last class, first of all, I want to ask, how are you? Quite happy, children? Now, what we were doing in the last class, we have started chapter 4, that was quadratic equation, and we have done exercise 4.1 also. Now, today I am going to start exercise 4.2 of quadratic equation. Clear? How to solve the quadratic equations. So I am starting exercise 4.2. Now question number 1. Listen, children. X square minus 3x. Question number 1. Find the roots of the quadratic. Roots means answer. Exercise 4.2. Question number 1. First part. X square minus 3x minus 10 equal to 0. Find the roots of this quadratic equation. So roots का मतलब आप समझते हैं, इसके दो आंसर आएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आंसर आते हैं. वो दो आंसर आपको निकालने हैं फैक्टर करके. तो डू द फैक्टर बाय मिडल टर्म. तो मिडल टर्म आप करते आ रहे हैं, 9th क्लास में आपने किया, 8th क्लास में आपने किया, तो मिडल टर्म के बारे में आपको खूब अच्छी तरह से पता है. सो डू द मिडल टर्म, डू द फैक्टर्स बाय मिडल टर्म ऑफ दिस इक्वेशन. सो यहां -10 है, तो क्या करना है आपको? डू द फैक्टर्स ऑफ 10 सच दैट देयर डिफरेंस इज 3. क्लियर चिल्ड्रन? डू द फैक्टर्स ऑफ 10 सच दैट देयर डिफरेंस इज 3. तो 5 and 2 क्लियरली 10 के और कोई फैक्टर होते ही नहीं. 5 and 2. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10. यहां एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जो बड़ा वाला फैक्टर है वो माइनस का लिया हमने, क्योंकि हमें यहाँ माइनस साइन चाहिए. दोनों फैक्टर का डिफरेंस 3 होना चाहिए. अगर यहाँ +5 लेता, यहाँ -2 लेता, तो भी डिफरेंस 3 होता. लेकिन अगर यहाँ +3 होता तो +5x लेते, इसको -2x लेते. क्लियर? सो नाउ टेक x कॉमन, x minus 5 plus 2 कॉमन, x minus 5 equal to 0. x minus 5 this factor once again common. इन दोनों जगह से x minus 5 फिर से कॉमन आ जाएगा. So here from here you will get x and from here you will get 2. So x, after taking x minus 5 common, you will get x from here and 2 from here. So that will become equal to 0. So from these two factors you can get the value of x. X is equal to 5 and x is equal to -2. So these are two answers. इन दोनों को ही हम रूट्स बोलते हैं. These are two roots. Roots means answer. Clear? So I am taking one more question. You all know very well about these things. I am taking third part of the question. Under root 2x square plus 7x minus plus 5 under root 2 equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू? पहले इस अंडर रूट 2 का इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, 2 इंटू 5 10. अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 7 होता हो. सेम 5 and 2, 5 plus 2 7 होता है, और 5 into 2 10 होता है. फिर से देखो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या बन गया? 2, और 2 into 5 क्या बन गया? 10. नाउ डू द फैक्टर ऑफ 10 लाइक हियर, जैसे यहां किए थे. तो डू द फैक्टर ऑफ 10 सच दैट देयर सम शुड बी इक्वल टू 7. So again we are having same factor 5 and 2. So under root 2 x square 2x plus 5x plus 5 under root 2. Clear children? 2x plus 5x का सम 7x होता है. अब यहां से इन दोनों में से कुछ कॉमन है. Anything you can take common from these two terms. Under root 2 from here and x from here.
यहां भी अंडर रूट 2 है, 2 के अंदर 2 कैन बी रिटन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये जो ये वाला 2 आपको दिख रहा है इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, दैट विल बिकम 2। सो टेकिंग अंडर रूट 2 कॉमन, so x from here and under root 2 from here. From here what you can take common? 5. So x plus under root 2 equal to 0. So x plus under root 2 and under root 2x plus 5 equal to 0. So either x is equal to minus root 2 or x is equal to minus 5 upon under root 2, minus 5 upon under root 2। यहां से x की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई माइनस अंडर रूट 2, और यहां से x की वैल्यू पहले माइनस 5 होगी, फिर माइनस 5 के नीचे अंडर रूट 2 चला जाएगा। सो दीज आर टू आंसर्स। क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज आर द टू रूट्स। नाउ आई एम टेकिंग one more question. Fourth part, 2x square minus x plus 1 by 8, 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0। तो सबसे पहले first of all remove this fraction। फ्रैक्शन हटाने का क्या मेथड होता है? remove this fraction first। so to remove any fraction multiply by that number। ये जो ये नंबर मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है यहां से, थ्रो आउट क्वेश्चन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब थ्रो आउट 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 0 के साथ भी 8 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बन जाएगा। नाउ 16 इंटू 1, अब ये 16 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू 1 दिस विल बिकम 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 बनता हो, 4 and 4 क्लियरली, 4 4 या 16, 4 into 4 16 होता है, 4 plus 4 8 होता है। क्लियर? तो 16x स्क्वायर प्लस 4x नॉट प्लस 4x माइनस 4x एंड माइनस 4x प्लस 1। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस 8x लाना है या प्लस 8x लाना है। अगर यहाँ प्लस 8x होता तो हम ये फैक्टर प्लस 4x और प्लस 4x ही लेते। सो टेक 4x कॉमन, तो 4x माइनस 1, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिखना होता। तो 4x माइनस 1, जब ब्रैकेट बंद करते हैं और यहां माइनस बाहर होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? इफ यू टेक दिस माइनस साइन फ्रॉम दीज टू टर्म, द साइन इनसाइड गेट चेंज। क्लियर? सो 4x माइनस 1 from here and from here, 4x minus 1, and here 4x and here minus 1. So 4x minus 1, 4x is equal to 1 and 4x is equal to 1. So x is equal to 1 by 4. Again x is equal to 1 by 4. So these are two answers of the question. Clear children? Now I am taking some words problem children. Question number 4. Find two consecutive positive integers such that sum of whose square is 365. Find two consecutive number कैसे होते हैं? Suppose one number is x, तो second number will be x plus 1. Consecutive number जैसे 2 3 3 4 5 6, इन numbers को consecutive number बोलते हैं। तो suppose first number is x, तो second number will be x plus 1. तो multiply the sum of the two consecutive number, nothing. Once again I am reading. Find two consecutive positive integers, the sum of whose square is 365. Question number 4. Let two consecutive number x and x plus 1. What is given? The square, sum of the squares.
is given 365, ये गिवन। हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। क्लियर? अब थ्रो आउट इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 का आधा होगा 180, तो ये हो गया 182। क्लियर? 182। अब मुझे 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 होता हो। तो फैक्टर करने का हमारे पास क्या मेथड होता है? सो 182 के स्मॉलर फैक्टर करेंगे डिवाइडिंग इट बाय 2। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। क्लियर? 7 13 जा 91। तो जैसे भी फैक्टर होते हैं वैसे हम कर लेते हैं। तो 182 कैन बी रिटन 13 इंटू 7 इंटू 2। तो एक फैक्टर हो गया हमारा 13, एक फैक्टर हो गया हमारा 14। तो 13 इंटू 14 यू कैन राइट। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक फैक्टर 14, एक फैक्टर 13। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x कॉमन, x प्लस 14, 13 कॉमन, x प्लस 14। अगेन आई एम रिपीटिंग, if you take minus sign common, then the sign inside the bracket get changed. अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर बाहर माइनस है तो if plus is outside then no need to change the sign inside. Clear? So x plus 14 and x minus 13 equal to 0. So x equal to minus 14 and x equal to plus 13. So we are finding the two positive consecutive numbers. So first number is 13. The first number, this is nothing. You have to take positive integers only. So first number is 13 and second number is 14. पहला नंबर x है तो दूसरा एक ज्यादा होगा उससे, x and x plus 1. Clear children? So this was one of the question. Now do one more question. Question number 6. A cottage industry produces certain number of pottery item in a day. It was observed on a particular day the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. Suppose किसी कंपनी में X आइटम बन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में हर रोज 10 आइटम बन रहे हैं. ठीक है चिल्ड्रन? अब उन 10 आइटम की कॉस्ट हर रोज चेंज होती है. तो हर रोज की कॉस्ट कंपनी अलग से डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल आज वो आइटम 20 रुपए का है, कल वो आइटम 21 रुपए का हो सकता है, उससे अगले दिन वो आइटम 19 रुपए का हो सकता है, उससे अगले दिन वो आइटम 25 रुपए का हो सकता है. तो कंपनी हर रोज नई कॉस्ट डिसाइड करती है. और कॉस्ट डिसाइड करने का कंपनी ने क्या तरीका ढूंढा है, क्या मेथड निकाला, वो मैं बताता हूं. लिसन. कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आइटम. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day. Suppose number of item produced on a particular day are X. Suppose number of item. This is question number 6. Number of item produced
in a day, Rx. Clear children? Now cost per day. इसके बारे में आपको फिर से ध्यान से सुनना है। 3 more than twice the number of article produced on that day. जितने आइटम बने इतने आइटम बने उसका ट्वाइस, एंड 3 मोर देन, इसमें +3 और ऐड कर दो। हर रोज इतने आइटम बने, ठीक है। हर रोज की कॉस्ट कैसे डिसाइड करनी है? पहले नंबर ऑफ आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 ऐड करो। ये गिवन है क्वेश्चन। 3 more than twice the item produced on a particular day, that will be the cost per day. हर रोज की कॉस्ट अलग निकालनी है। एंड टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, सारे आइटम की टोटल कॉस्ट उसने बताई है 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल आइटम्स, टोटल कॉस्ट, तो नंबर ऑफ आइटम इंटू कॉस्ट, so that is equal to x into 2x plus 3, and that is given equal to 90. So main work here to find the cost. So 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. So this will be the equation. Now 90 into 2, 180. 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 होता, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 होता। क्लियर चिल्ड्रन? सो 180 फैक्टर करना देख लीजिए आप लोग। 2 ये हो गया 90, अगेन 45, अगेन 3 15 हो गया, अगेन बाय 3 5. So 180 can be written 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 5 3 ja 15 and 2 2 ja 4, 2 3 ja 12. 12 and 15. These are 2 factors. पहले इसके स्मॉलर फैक्टर करके देखेंगे, फिर इनका कॉम्बिनेशन मिला के देखेंगे कि कौन से 2 फैक्टर का डिफरेंस 3 आता है। तो एक 15 हो गया, एक 12 हो गया। Taking 15 and 12 together and their difference is 3. Clear children? So 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. So x common, 2x plus 15, and here what can be taken common? 6 you can take common, 2x plus 15, because 6 15 ja 15 6 ja 90 होता है। तो 2x plus 15 once again common, and x minus 6 equal to 0. So x will be equal to 6 or 2x is equal to 15, or x cannot be equal to minus 15 upon 2. नंबर ऑफ आइटम, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कभी भी माइनस में नहीं होते और फ्रैक्शन में नहीं होते। तो x इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस पर डे, नंबर ऑफ आइटम 6, एंड कॉस्ट पर डे, कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू 2 into 6 plus 3. So 12 plus 3, that is ₹50. Number of item are 6 and total cost per day, cost of one item per day, ₹50. Clear children? एक बार फिर से बताता हूं। पर डे x आइटम बन रहे हैं, पर डे की कॉस्ट अलग निकालनी है हर रोज। कॉस्ट पर डे, जितने आइटम है उसका डबल करो और +3 कर दो। हर रोज का उन्होंने यही प्रोसीजर बनाया हुआ है। मान लो आज 15 आइटम बन रहे हैं, तो आज की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक आइटम की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और उसमें 3 ऐड करेंगे, तो 33 कॉस्ट का आइटम।
कॉस्ट हो गई एक आइटम। मान लो आज 20 आइटम बन रहे हैं, तो 20 इंटू 2 40 और उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है अपने पास से कि जितने भी आइटम बनेंगे पहले उसका डबल करेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे। दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पर आइटम पर डे। कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ वन आइटम पर डे। क्लियर चिल्ड्रन? सो नंबर ऑफ आइटम इंटू कॉस्ट विल बी इक्वल टू 90। ये 90 पूरे दिन की कॉस्ट बताइए उसे। इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू -15/2। -15/2 हम नहीं लेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? So now I am starting next exercise. Next exercise is the exercise of completing square method. Completing square method अब सिलेबस में नहीं है। Completing square method अब CBSE की तरफ से हमारे सिलेबस से हटा दिया है। So now we have to start Sridharacharya method. Clear to children? I am starting exercise 4.3. That is called discriminant method. Sridharacharya method or discriminant method. Listen children, completing square method. Not in syllabus. Not in syllabus. अब ये चैप्टर सिलेबस में नहीं। क्लियर? नाउ सेकंड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड का मतलब ये, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी इक्वेशन ax² + bx + c = 0। क्लियर? सो x² के पास जो टर्म होती है उसे a बोलते हैं, x के पास जो टर्म होती है उसे b बोलते हैं, और जो टर्म विदाउट x होती है उसे c बोलते हैं। तो x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। इससे x की वैल्यू आ जाती है। इस मेथड से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं चिल्ड्रन जो मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होते हैं, तो इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमें a b c की वैल्यू बस यहाँ फॉर्मूले में पुट करनी होती है और हमें इस मेथड को सॉल्व करना होता है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना होता है। उससे हमारी x की वैल्यू आ जाती है। दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड discriminant method, and this method was given by Sridharacharya. Sridharacharya was an Indian mathematician. So this method is also known as Sridharacharya method or discriminant method. So x is equal to -b + -b² - 4ac upon 2। क्लियर चिल्ड्रन? अब सबसे पहला काम ये है हमारा कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है हमें डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं। हम इस टर्म को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। This is also represented by d, and d is equal to b² - 4ac। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं और उस इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। क्लियर? तो अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन लिया था
पिछली एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन लिया था, x² माइनस 3x माइनस 10। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उसके लिए। 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मिडिल टर्म से भी सॉल्व हो जाएगा और उसी मेथड से अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? प्लस 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? माइनस 6। a b c माइनस, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 6। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, अब यहां वैल्यू पुट करते हैं जरा हम x में, तो माइनस b, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है? माइनस 1। माइनस फॉर्मूले में है और ये b की वैल्यू है 1। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? इंटू माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 2। एक बार फिर से देखो, b की वैल्यू क्या है? 1। तो b की वैल्यू मुझे यहां भी पुट करनी है, यहां भी, तो 1 पुट कर दिया जाएगा, माइनस फॉर्मूले में ये है। तो b² क्या है हमारे पास? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। क्लियर? तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 जा 8, 6 जा 48 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49। यू ऑल नो द अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 क्या होता है? 7। तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। तो ये प्लस माइनस 7 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक बार प्लस 7 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस 7 लेके सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 4 एंड माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 4। तो ये हो गया 6 अपॉन 4 और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4। ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। क्लियर चिल्ड्रन? तो यही वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट इससे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व किया। पहले हम मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का दूसरा नाम श्रीधराचार्य मेथड भी है। श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे फॉर्मूला बनाया गया। क्लियर चिल्ड्रन? सो दैट इज द एंड ऑफ द डे ऑफ एंड of your class, children. Thank you and have a nice day.